الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ اور مسجد سے باہر ہمارے گھروں سے سننے والی ہماری مائیں بہنیں، میں آج پھر سے ان تمام اپنی ماؤں اور بہنوں کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر کے یہ آدھا گھنٹہ فارغ کر لیں. اور چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں ہم نے الحمدللہ شرح و دروس المحمہ یہ جو کتاب ہے جس کے لکھنے والے ہیں علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے میت کے بارے میں ہمارا ورکشاپ چل رہا ہے جو اس مہینے میں چل رہا تھا، ابھی جاری ہے. ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو شروع میں اس کے لیے زندوں پر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پھر ہم نے غسل کے بارے میں پڑھا کہ غسل کس طرح دیا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں غسل میں آتی ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے تکفین المیت، یعنی میت کو کس طرح سے غسل کفن پہنایا جائے گا. تو آج کا ہمارا جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ تکفین المیت ہے. تکفین المیت یعنی میت کو کس طریقے سے کفن دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا درس شروع کریں، میں نے ایک حدیث لکھی ہے بورڈ پہ. یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لائی ہے اور حدیث نمبر ہے 2112. افسوس کی بات یہ ہے، مجھے پہلے جمعہ پر، گزشتہ جمعہ پر بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا، اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے، مجھے دھیان نہیں جا رہا تھا، مجھے توجہ دلائی تھی کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے اللہ سے. لیکن بارشیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں اللہ رب العالمین یہ بارش روک دیتا ہے؟ کیوں قحط سالی آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور میرا دل روتا ہے اور ساتھ میں میرا خون بھی کھولتا ہے کہ اتنی جہالت ہے ہم لوگوں کی، اتنے جاہل ہم ہو گئے کہ جنگلوں میں ہم آگ لگا دیتے ہیں. اور کہاں سوئی ہوئی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن، کہاں ہے اس وقت ہماری سرکار جو یہاں اتنے وہ کیئرلیس ہے کہ وہ جنگلوں کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے. کوئی ایک درخت کاٹ لیتا ہے مکان کے لیے، نہیں کاٹنا ہے، اللیگل ہے. پوری ٹیم پہنچ جاتی ہے اس کے گھر میں اور اس کو مال ضبط کیا جاتا ہے. لیکن پورے جنگلوں میں آگ لگا دی جاتی ہے. پوری اس جناب ویلی خطے میں ہر جگہ جنگلوں میں آگ لگائی گئی. لیکن we can't see any administration. ہم نے کسی ایڈمنسٹریشن کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہو. میں اس لائیو کے ذریعے ڈسٹرکٹ ڈوڈا کی ایڈمنسٹریشن تک یہاں مسجد سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسے مجرموں کو پکڑو اور ان کے خلاف کیس دائر کرو. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام نے کہا ہے. یہ جو مسجد سے میں ایڈمنسٹریشن کو کہہ رہا ہوں، یہ میرا کوئی تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے اور نہ میں رہوں گا کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ. میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہوں، لیکن میں ہوں تو الحمدللہ اسلام کا ماننے والا ہوں، قرآن کا جاننے والا ہوں، حدیث کا جاننے والا ہوں، فقہ کا جاننے والا ہوں، اصول فقہ کا جاننے والا ہوں، علوم قرآن کا جاننے والا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے والا ہوں الحمدللہ. اور میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میرے تکیے پر بھی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، میرے سامنے حدیث کی کتابیں، میرے پیچھے قرآن مجید، میرے آگے قرآن مجید. یہ جلانے والا کون؟ اس میں مسلمان بھی ہیں. جنگلوں کو آگ لگا رہے ہو، دیکھو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور دنیا کے لیے میں پہلے
कहता था, आज भी कहता हूं कि अगर दुनिया अमन चाहती है, अगर दुनिया सुकून चाहती है, अगर दुनिया करार चाहती है, अगर दुनिया फित्ना और फसाद से आजादी चाहती है, तो वो आजादी सिर्फ और सिर्फ उसको दीन इस्लाम के अंदर मिलेगी। वो आजादी सिर्फ और सिर्फ उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मा मिन मुस्लिमिन गरसा गरसन फाकल मिनहुल इंसान औ दावतुन इल्ला कान लहु मिन सदक़तिन। ये हदीस है, लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, हमने कुरान के रहे, हमने दुनिया के रहे, खुसूसन मैं अपनी बस्ती वालों को कहता हूं, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे। हमारी बस्ती में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, आलिम भी नहीं है कोई, और मुझे इस बात पे फख्र नहीं है। अल्लाह मुझे बचाए फख्र से। मैं पहला शख्स हूं जो इस बस्ती का आलिम दीन है। मैं पहला शख्स हूं जो इस बस्ती का ग्रेजुएट, फुल ग्रेजुएट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। क्या ये हमारे लिए बेशर्मी की बात नहीं है कि 21st सेंचुरी गुजरने के बाद भी हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं है, हमारे पास कोई ग्रेजुएट नहीं है, हमारे पास कोई एमए नहीं है, कोई पीएचडी नहीं, कोई एमफिल नहीं है। जब हम न दुनिया के रहे न दीन के रहे तो हम फसाद बर्पा करने वाले बन गए। जंगलों में आग मत लगाओ, ये जंगल अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया जो भी मुसलमान कोई दरख्त लगाता है, हम लगा दे क्या? हम जो अल्लाह ने लगाए हैं उन्हीं को तबाह व बर्बाद करने में तुले हुए हैं। फरमाया जो भी मुसलमान कोई दरख्त लगाता है, फअकल मिनहुल इंसान, फिर उस दरख्त से कोई इंसान खाता है। ये जो जंगलों में दरख्त, क्या उनको फल नहीं बनते हैं? क्या बांदर, क्या भालू, क्या शेर, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है? जब आप आग लगाते हो कितनी चिड़ियां जल जाती हैं, कितनी चींटियां जल जाती हैं, कितना हमारा कौमी एसेट, हमारा नेचुरल एसेट, हमारा नेशनल एसेट तब वो बर्बाद हो रहा है। हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई इंसान दरख्त लगाता है, इस्लाम, अभी बहुत सारे लोग कैंपेन चलाते हैं दरख्त लगाने की, आपने देखा होगा, एक डे मनाया जाता है स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह। ये तालीम इस्लाम ने दी है। इट इज इस्लाम दैट हैज टॉट अस। ये इस्लाम है जिसने हमें सिखाया है दरख्तों की हिफाजत करना, दरख्तों को बचाना। इसलिए मेरे जवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, जहां तक भी मेरी बात पहुंचती है, दरख्तों को नुकसान मत पहुंचाओ, दरख्त मत जलाओ। आपके जरिए पता नहीं कितने जी जान, कितने जी रूह तबाह बर्बाद हो रहे, कत्ल हो रहे हैं। कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। दरख्त लगाओ, पेड़ लगाओ, ये इस्लाम कहता है। हदीस है आपके सामने, और ये हदीस उस किताब के अंदर है जिस किताब के ऊपर तमाम उलमाए इस्लाम का मुत्तफकुन फैसला है। असहु किताबुन बाद किताबिल्लाह, यानी कुरान मजीद के बाद ऑथेंटिक तरीन किताब, सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। और उसकी हदीस नंबर 2112, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने दरख्त लगाया उसमें इंसानों ने खाया या किसी चिड़िया ने खाया। दावतन कहते हैं हर उस जानवर को जो जमीन पे रेंगता है, जो जमीन पे चलता है, वो इंसान के लिए सदका बनेगा। लेकिन जो इंसान इन जानवरों को इस वक्त जला रहे हैं, इन दरख्तों को जला रहे हैं, एक तो वो कौमी नुकसान कर रहे हैं, दूसरा वो अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हैं। मेरा मौजू नहीं है आज ये, वरना मैं आपको बता दें कि बारिश रुकती है, इसके बुनियादी वजह एक ये भी है जो, क्योंकि हमारी बदकिस्मती, हम पढ़े लिखे ही नहीं है असल में। अगर हमने साइंस पढ़ी होती, मेरा टॉपिक आज नहीं है, मेरा टाइम चला जाएगा। साइंस जब आप पढ़ेंगे, साइंस में आपको मिलेगा ये दरख्त एक सबब है बारिश बरसने का। अगर दरख्त खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, बारिशें नहीं आएंगी। ये एक जाहिरी सबब है बारिश ना आने का। ये जंगल वो नार बारिश ही ने, कुछ बेवकूफ समझते हैं जंगलों में आग लगाएंगे बारिश आएगी। हमको बारिश नहीं आएगी, अफसोस, बारिश रुक जाएगी। साइंस पढ़ो, इल्म हासिल करो, तुम्हें पता चलेगा। जहालत है, अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ज़कात देना लोग बंद करेंगे, बारिश नहीं आएगी। खैर, मेरा मौजू आज ये नहीं है, किसी दिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस पे बात करूंगा। हमारा मौजू है आज कि मय्यत को किस तरह कफन दिया जाएगा। अब मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि देखिए मरना हम में से हर एक ने, हम कई जुमा से इसी पे बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा ये तीसरा दर्स है और मैं ये चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम में से हर एक इस्लाम का जानने वाला बन जाए, हम में से हर एक इस्लाम की बुनियादी तालीमात का जानने वाला बन जाए। इसीलिए
یہاں پر بورڈ ہم نے لگایا, یہاں پر ایسے درد ہم نے شروع کیا تاکہ ہر ایک انسان جب کوئی مر جائے, ہمارے گھروں میں جب میت ہو جائے, ہمیں کسی کو فون کر کے بلانا نہ پڑے, ہم میں سے خود آدمی اٹھے اور غسل بھی دے سکے, کفن بھی پہنا سکے اور جنازہ بھی دے سکے, تمام مسائل کرا سکے. تو پہلی چیز جو ہے کفن پہنانا جو ہے, آپ یاد رکھیں گے یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر معاشرے میں سے چند لوگ کریں گے, باقی لوگوں سے یہ جو ہے فرض ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو تمام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار. تو پہلی چیز ہم یہ جان لیں گے کہ میت کو کفن پہنانا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اب یہ بات ہے کفن کے بارے میں, پھر ہم اس کتاب کی طرف بڑھیں گے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں. کفن کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے کچھ مستحب چیزیں ہیں کفن کے بارے میں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ سفید رنگ کا ہونا چاہیے. یہ مستحب ہے, ضروری فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت ہے, مستحب ہے کہ کفن کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ سفید ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا, ایک بات کہی تھی, جب بھی ہم کوئی بات کریں اس بات کو سند ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں دین سمجھ کر کی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو صرف کچرا اور کوڑا اور کرکٹ سے زیادہ کوئی تعلق, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو کیوں ہونا چاہیے سفید کپڑا؟ بھائی دلیل ہونی چاہیے نا. لال کپڑا کیوں نہیں, کالا کپڑا کیوں نہیں, نیلا کیوں نہیں, سفید ہی کیوں؟ تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. اور دلیل کس کی چلے گی؟ دلیل چلے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دلیل کیا ہے اس کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, عباس کے بیٹے ہیں. عباس اللہ کے رسول کے چچا تھے. ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیر ثیابکم البیاض البسوا احیاکم وکفنوا فیہا موتاکم. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میت کو سفید کپڑے میں کفن دیا جانا چاہیے. پہلی چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم اپنے میت کو, مردوں کو کفن دیں تو ہم کس کپڑے کا اختیار کریں؟ سفید کپڑے کا اختیار کریں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پر ہے. دوسری چیز, جو کفن کا کپڑا ہے وہ ایسا تراوٹ ہو گئے آسن سکے آسن اڑی کیے یہاں دیے بالکل گھومتی ہوں نہیں, رت گئے آسن, لیکن اتنا مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ ہوتے نا امیر, اب کوئی کہے گا میں اپنے بابا کو ایسا کپڑا پہناؤں جو 1200 روپے کے میٹر ہوگا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے معاشرے میں ہے نا جس کی یہاں دولت ہے, قربانی کے دن بھی, پھر ہم پورے معاشرے میں یہ چلاتے رہتے ہیں تو میام اور کاٹ ترنت ساتھ میں ہوئی تم ایسے ہاں میں خاطر اسی قانون, تو کیا فائدہ اس کا؟ اسلام میں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی چیز کرنا یہ شرک ہے, اور شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ایسا کپڑا ہو جو نہ زیادہ جلدی ختم ہونے والا ہو, نہ زیادہ مہنگا ہو, بلکہ عمدہ ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. کیوں؟ اب عمدہ کپڑا کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھو ہماری یہ خصوصیت ہے الحمدللہ, ہم جب بات کرتے ہیں تو ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتے ہیں, اور یہ ضروری ہے کیونکہ وہ بات قابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساتھ نہ دے. کیوں عمدہ کپڑا ہونا چاہیے, کیوں صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہی صحابی عبداللہ بن عباس ہی روایت کرتے ہیں, نہیں سوری جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں, دوسرے صحابی, ایک دوسرے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ روایت کرتے ہیں. اور یہ حدیث ہے, امام حاکم نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. یہ حدیث کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کا نمبر ہے 1382, 1382 حدیث نمبر ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے جب اپنے میتوں کو آپ کفن دیں تو اچھے کپڑے کا استعمال کریں. کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن. کیا مطلب ہوا اس کا؟ فلیحسن کفنہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اس کا کفن بہترین ہو. کیا ہو؟ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز ہم یاد رکھیں گے کہ ہم جب کفن دیں تو کفن بہترین ہو. تیسری چیز, کفن میں خوشبو لگا, جو میں نے غسل کے دوران بھی آپ کو کہا تھا, غسل کے چیپٹر میں بھی
गुस्ल के दर्स में भी मैंने आपके सामने ये बात वादे की थी कि कफिन के जो तह होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें खुशबू लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कहां पर है? एक हदीस की किताब और है, उस हदीस की किताब का नाम है इब्न हिब्बान। उस हदीस की किताब का क्या नाम है? इब्न हिब्बान उसका नाम है, और ये हदीस सही है। और इस हदीस का नंबर है 3031, यानी 3031 इस हदीस का नंबर है। तो क्या फरमाया? फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा जम्मरतुमुल मय्यित फअवतिरूहु, कि जब तुम मय्यित पे खुशबू का छिड़काव करो तो वितर करो। तो जो शारहीन हदीस है, जो हदीस के शरह करने वाले हैं, जिन्होंने हदीस की एक्सिजीज या कमेंट्री बयान की है, उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि जब मय्यत पे हुक्म दिया ये खुशबू लगाने का, तो उसके कफन में भी खुशबू लगानी है। लेकिन याद रहे कि वितर ताक अंदाज में, ताक बार उसके कफन में हमने क्या करना है? खुशबू लगानी है। तो ये हो गई तीसरी चीज जो मुस्तहब है कफन के ताल्लुक से। चौथी चीज जो है, जब मर्द मय्यत होगा, जब मय्यत जो है वो मर्द होगा, तो उसको 3 कपड़ों में क्या करना? कफन देना। 3 कपड़ों में कफन देना। इसकी भी दलील है। दलील क्या है? फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बयान कौन कर रही है? हदीस बयान कर रही है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जितनी भी सहाबियात थी, जितनी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, दौर में औरतें थी, उनमें सबसे बड़ी आलिम, सबसे बड़ी स्कॉलर, सबसे बड़ी फिलोसफर, सबसे बड़ी आलिम जो थी वो अल्लाह के रसूल की ज़ौजा मोहतरमा, हम सब की माँ, मेरी माँ, आपकी माँ, तमाम मुसलमानों की माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। वही रिवायत करती है। वो क्या फरमाती है? फरमाती है कि कुफिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, यह कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया फी सलासति अस्वाबिन बीजिन सुहुलियतिन, कि फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में क्या कर दिया गया? कफन दिया गया। और इस हदीस में आगे ये है कि उस कफन में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में न तो कमीज थी और न इमामा था। ये बाद में मैं वजाहत करूंगा कफन कैसे दिया जाएगा, वो बाद में आएगा। उसके बाद औरत के बारे में, जब औरत होगी तो औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाए। कितने कपड़ों में? इस पे भी हदीस है। ये हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लाई है। हदीस की किताबों में सबसे बड़ी किताब वो इमाम अहल सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिसका नाम है अल मुस्नद। 56 की कई जल्दों में वो किताब है, और तमाम हदीसें उसमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी हदीसें नकल की। तो उसमें ये हदीस है, इसकी रिवायत करती हैं लैला बिन्ते क़ानिब, एक सहाबिया है, वो इसकी रिवायत करती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम फौत हो गई, इंतकाल कर गई, तो उनका कफन जब पहनाया जा रहा था, मैं उधर ही थी, तो उनके कफन में कितने कपड़े थे? 5 कपड़े थे। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, और इस हदीस का नंबर है 27135। तो ये बातें हो गई कि मय्यत को जब हम कफन देते हैं तो उस कफन में क्या चीजें मुस्तहब हैं, ये हम पहले याद रखें। अब मय्यत के कफन का तरीका, यानी मय्यत का कफन कैसे काटा जाएगा, कैसे दिया जाएगा, अब इसका तरीका है। अब मैं किताब से पढ़ूंगा, क्योंकि हम किताब का मुताला कर रहे हैं। ये मैंने आपको खुलासा बयान किया कि मय्यत के कफन के ताल्लुक से सुन्नत क्या चीज है, तो ये हम याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैं पिछले दरस में मुझे याद आया, एक बात भूल गया था मैं, वो मैं यहां वजाहत करना चाहता हूं। वो ये कि मैं एक बात भूल गया था आपको बताना, वो ये बताना भूल गया था, जब मय्यत को गुस्ल दिया जाएगा, जो गुस्ल देने वाले होंगे, जिनको गस्साल कहते हैं अरबी में, उन पर गुस्ल करना सुन्नत है, याद रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया मन गस्सल मैतन फलयगतसिल, ये हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में से जो मय्यत को गुस्ल दे उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। लेकिन हो सकता है हमारे दिमागों में ये आ सकता है हमारे दिमागों में ये कि इसलिए हदीस में कहा गया कि मय्यत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देना चाहिए, मुस्ताहब है, सुन्नत है, कोई फर्ज नहीं है, कि हो सकता है मय्यत को गुस्ल दे के हम क्या हो गए, नापाक हो गए, नऊज़ बिल्लाहि
हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे समझे, क्योंकि समझ सकते हैं, क्योंकि हम मय्यत जब हम हमारे घर में कोई मरता है हम उसके कपड़े नहीं पहनते हैं, तो हमारे ज़हनों में तो आ सकता है कि अल्लाह के रसूल ने इसलिए हुक्म दिया गुस्ल करने का कि शायद मय्यत को गुस्ल करने के बाद इंसान क्या हो जाता है, नापाक हो जाता है, इसलिए हुक्म नहीं दिया। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े इमाम हैं जो गुजर गए हैं, अल्लामा इब्न बाज, इनके वालिद साहब जिन्होंने ये किताब लिखी है, इन्हीं के वालिद साहब, वो बयान करते हैं, तफसीर बयान करते हैं कि क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मय्यत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना चाहिए या वुजू करना। क्यों? क्योंकि जो इंसान मय्यत को गुस्ल देता है, भाई कि मय्यत को गुस्ल देना कोई आसान बात नहीं। अगर किसी इंसान का बाप फौत हो गया, वो वही जानता है जिसका बाप फौत हो जाए। अब लड़के के लिए जरूरी है साहिबजादा ही अपने बाप को गुस्ल दे, ये बहुत ही पन्निस मय्यत गुस्ल, जब लड़का अपने बाप को गुस्ल देगा जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसका दिल टूटा हुआ होगा, तो उसको उसके अंदर हशाशत बशाशत लाने के लिए, तरोताजगी लाने के लिए ये हिकमत बयान की अल्लामा इब्न बाज ने। तरोताजगी बयान लाने के लिए क्या कर दिया गया, गुस्ल मुस्ताहब किया गया, क्योंकि गुस्ल करने के बाद इंसान जरा क्या हो जाता है, तरोताजा होता है। तो याद रखना चाहिए, मैं पिछले दर्स में भूल गया था बोलना कि जब इंसान मय्यत को गुस्ल दे उसके बाद गुस्ल करना चाहिए, सुन्नत है, मुस्ताहब है। अगर नहीं करेगा कोई तो उस पर हम लान तान नहीं करेंगे, लेकिन सहाबा के बारे में आता है कि सहाबा जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे करते हुए वो करते, तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी मय्यत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं किताब की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरीके से मय्यत को कफन दिया जाए। एक बात और बीच में अर्ज करूंगा कि हमारे माशरे में जब कफन दिया जाता है तो हम मशीन और सुई लेके पहुंच जाते हैं, कफन को सिया नहीं जाएगा। पहली बात यह, अगर आज तक हमने सिया कोई बात नहीं, अगर किसी ने आज तक कफन को सिया सीते थे कोई मसला नहीं, कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि आ तो ऐसे कफन सुवन वह सोगो गलत क्या गलत हो ना, बिल्कुल गो न किए गलत अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हमने जान लिया आज के बाद हम मशीन और कैंची वो ये मशीन नहीं उठाएगा, मय्यत के कफन को सिलेंगे नहीं सिलेंगे, ये बात आप याद रखना। फरमाया साहिब किताब फरमाते हैं खामिसन तकफीरुल मय्यत व हादिहिल मरहतु अल्लती तलील तकफीर फबाद अन युगस्सल अला अलवस्फ अलذي तक़द्दम युकफ़न। क़ाल रहमुल्लाह अल अफ़ज़ल अन युकफ़िन अर्रजुलु फी सलासति अस्वाबिन बीज़िन लैसा फीही कमीसुन वला इमामतुन कमा फ़ुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें बयान किया गया ये फरमाया अफजल ये है कि मय्यत मर्द को 3 कपड़ों में गुस्ल दिया जाए, 3 कपड़ों में कफन दिया जाए। वो क्या है? फरमाया 3 कपड़े क्या हैं? फिर सलात अस्वाबिन बीज़िन कमीस वाला, फरमाया उसमें न कमीस होगी और न इमामा होगा। रसूलुल्लाह को ऐसे ही दिया गया था। आमतौर से अहले अरब आज भी कैसे देते हैं मैं आपको बताऊंगा, इधर मेरे पास वर्क अगर मौजूद हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि अरब में कैसे कफन दिया जाता है। अरब में कफन कैसे दिया जाता है, ये मेरे पास कितने वर्क हैं? 3 वर्क हैं। कितने वर्क हैं? कोई कफन देना कोई मुश्किल नहीं, जैसे गुस्ल देना कोई मुश्किल नहीं था उसी तरीके से कफन देना कोई मुश्किल हमने ऐसे हवा खड़ा करके रखी हुई है। भाई भाई इसका खास मनु वासनी बोला सुई दी, भाई हमें से हर एक कफन पहना सकता है। अरब में, सऊदी अरब में या अरब के अलावा बहुत सारे मुल्कों में वो भी सुन वो कफन के काफी तरीके, कफन देने के काफी तरीके, लेकिन 2 तरीके मैं आपके सामने रखूंगा। एक वो तरीका, जरा आगे आगे आए आप लोग, एक वो तरीका जो इस किताब में बयान किया गया है और जो अरब में आज भी वही तरीका राइज है, और एक वो तरीका जो हमारे यहाँ राइज है वो भी सही है। यानी जो हम यहाँ अपने मुल्क में या अपने माशरे में जिस तरीके से हम कफन देते हैं वो भी सही तरीका है, लेकिन उसमें हम गलती सिर्फ यह करते हैं कि हम उसको सीते हैं, सीना नहीं है, कफन को सीना नहीं है, हम गलती करते हैं। बाकी जिस तरीके से हम कफन देते हैं यहाँ वो ठीक है। अरब में कैसे कफन देते हैं, अब इधर आप सब लोग ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। 3 चादरें होती हैं बस। कितनी चादरें होती हैं? 3 चादरें होती हैं। जैसे हम यहाँ आमतौर से आखिर में जब हम आजकल यहाँ अपने माशरे में किसी को कफन देते हैं, जो आखिर में हम चादर लपेटते हैं, अंदर सब कुछ पहन करके आखिर में जो हम मुर्दे को, मय्यत को जो कफन पे चादर लपेटते उसको लिफाफा कहते हैं। तो अरब में उसी तरीके से आज भी इस तरह 3 चादरें ली जाती है। 3 चादरें, ये 3 चादरें ली जाती हैं और इनको ऐसे रखा जाता है, फिर एक चादर लपेट ली जाती है, फिर एक चादर, यानी और ख्याल ये रहना चाहिए कि बाएं तरफ जो है ये बाईं तरफ अंदर रहे और दाएं तरफ इसके क्या रहे, ऊपर रहे। तो ये तीनों चादरें लपेट ली और फिर इनको हम वो बांध लेते हैं
वो जो डोरियां होती है, 3 डोरियां होती हैं, वो हम बांध लेते हैं, बस हमारा कफन क्या हो गया। ये भी सुन्नत तरीका है। देखो कितना आसान है, आसान है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, 3 चादरें लेनी है, इसमें से एक चादर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लिफाफा, जो सबसे पहले हम नीचे रखेंगे, इसको कहेंगे लिफाफा, इसको कहेंगे इज़ार, इसको कहेंगे कमीज। कुछ नहीं करना है, काटना नहीं, पीटना नहीं, कुछ ही नहीं करना है। समझ रहे आप? जो अरब में होता है, जो आज भी अरब में होता है, वो क्या है, सबसे पहले कुछ नहीं, इसमें कुछ किया है, ऐसे ही बिल्कुल रखा नीचे, इसको लिफाफा, उसके ऊपर ये इज़ार, उसके ऊपर ये कमीज। इन तीनों को क्या कर दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा, यहां बांधा जाएगा, नीचे बांधा जाएगा, बीच में बांधा जाएगा, हमारा कफन क्या हो गया, कंप्लीट। ऐसे आज भी अरब में कफन दिया जाता है। इसमें आपने कहीं नहीं देखा कि कहीं गला काटा गया, कहीं नहीं, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ 3 क्या लाई गई, चादरें लाई गई। और हदीस में आता है, जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की है, जो हदीस है बुखारी शरीफ में, तो हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह कफन दिया गया। इसीलिए अरब में आज भी इसी तरह कफन दिया जाता है। लेकिन हमारे माशरे में जो कफन, जो क्या कहते हैं, कफन देने का तरीका जो राइज, वो भी सही है, उस पर भी हदीसें मिलती हैं, वो कोई गलत नहीं है, उस पर क्या है। तो फरमाया आगे, यही इसी किताब में आगे ये बयान करते हैं, वइन कुफिन फी कमीसिन व इज़ारिन व लिफाफतिन फला बासा। इन्होंने कहा खुद ही, क्यों इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हदीसें उस पर भी हैं। फरमाया अगर कफन दिया जाए मय्यत को, किसमें, कुर्ते में यानी कमीज में, और इज़ार में, और लिफाफे में, हो गए 3। अब उसमें क्या करना है, उसमें भी मैं बताऊंगा, अभी इन पे मेरे लिखा है, मैं काट नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। जो हमारे माशरे में जिस तरह कफन दिया जाता है, क्या करना है, मय्यत अभी हमने रखी हुई है, मय्यत का सतर नहीं खुलना चाहिए, उस पर वो ढका रहना चाहिए, सतर ढका रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले कफन का क्या रखेंगे, लिफाफा रखेंगे, यानी जो बाल में मय्यत को पूरे हम क्या कर देते हैं, ऊपर से लपेट देते हैं। तो सबसे पहले हम लिफाफा रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, ये लिफाफा हमने रख लिया। इसके बाद इज़ार जो होता है, इज़ार जो मय्यत का तहबंद होता है, वो कितना होता है, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा किसी को, मैं ऐसे ही बोलूंगा, वो इस लिफाफे से थोड़ा छोटा होता है, लिफाफा ही होता है, वो भी चादर ही होती है, वो कोई शलवार जैसा नहीं होता है, वो कोई तहबंद नहीं होता है जो यहां से बांधा जाए, जो यहां से बांधा जाए, इधर से बांधा जाए यहां तक, बल्कि जो शलवार होती है, जो इज़ार होता है, वो लिफाफे से थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। वो भी सर से लेकर कहां तक रहेगा, पांव तक रहेगा। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, हम पहले लिफाफा डालेंगे, उसके बाद इज़ार डालेंगे, इज़ार के ऊपर कमीज डालेंगे। कमीज में क्या करेंगे, जो मय्यत की कमीज रहेगी वो घुटने तक रहेगी, उसको क्या करेंगे, जैसे ये है कमीज, समझो कि ये है कमीज, ये क्या है, इसको ऐसे करेंगे, दो है, हमने इसको ऐसे 2 किया, समझ लो ये कपड़ा है, इसको हमने 2 किया ऐसे, फिर कर लो इसको ऐसे बराबर, फिर यहां से इसको गला काट दो, इसका गला काट दिया, ये रख दिया हमने, पहले हमने लिफाफा रखा, उस पर इज़ार, उसके ऊपर कमीज रखी, कमीज के ये दो पल्ले हैं, तो एक पल्ला कमीज का उठा के कंधे के पास रखना है, फिर कमीज के अंदर मय्यत को क्या करना है, डाल देना है, रख दी कमीज के ऊपर, सतर पे याद रहे कि सतर पे कोई कपड़ा जरूर रहना चाहिए, सतर खोलना नहीं, अभी तक सतर बंद है, सतर पोशी है, तो कमीज हमने पहना ली, फिर कमीज के ऊपर हमने इज़ार पहनाना है। इज़ार वही बड़ी सी चादर जो लिफाफे से छोटी चादर होती है, वो चादर हमने मय्यत को क्या करनी है, पहनानी है, रखनी है ऊपर। और याद रहे कि जो बायां उसका पल्लू है वो दाएं के नीचे रहे। फिर आखिर में क्या करना है, आखिर में वही जो लिफाफा, बड़ा सा लिफाफा होता है, वो पहनाना है, तो हमारा मय्यत का कफन जो है खत्म हो। मेरे ख्याल से हल हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा मेरे जवानों को मेरे जो जवानों से जो यहाँ के, उनको मेरे साथ कांटेक्ट है, वो मुझे पूछ सकते हैं, या पूछते भी हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। ये हो गया मय्यत मर्द का कफन जो पूरा हो गया, यानी लिफाफा। देखो हमने कहीं मशीन का इस्तेमाल किया नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी सीने की, हमें जरूरत ही नहीं सीने की, बस हमने सिर्फ कमीज में क्या करना है, कमीज पकड़नी, गला काटना है और लगानी है, बस सीना मीना कुछ नहीं है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन को सिया नहीं गया। और नहीं कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस, कोई मनगढ़ंत से मनगढ़ंत हदीस हमें मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने कहा हो या हुक्म दिया हो कि कफन को सिया करो, या कोई ऐसा अमल मिलता हो किसी इमाम अबू हनीफा से, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, किसी से नहीं मिलता है कि कफन को सिया जाएगा। अभी हमारे माशरे में क्यों सीते हैं मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अगर आज तक सीते थे, अब नहीं सीना चाहिए। यह सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका यह है कि बगैर सिले हुए कपड़े होने चाहिए, जिनको सिलना नहीं है, और वही 3 कपड़े जो मैंने आपके सामने वजाहत की। और वो 2 तरीके हैं,
दोनों तरीकों में से जो आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे, उन दोनों तरीकों से आप अपने मुर्दों को, आप अपनी मैयतों को क्या कर सकते हैं? कफन पहना सकते हैं। यानी एक तरीका वो मैंने बताया, 3 चादरों में लपेट दो आपके मैयत को, हमारे मैयत को क्या हो गया? कफन हो गया, मुकम्मल हो गया। एक वो तरीका है जो सही तरीका है, उसी तरीके से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया। दूसरा तरीका मैंने कहा जो हमारे राइज है, जिसपे हम अमल करते हैं, हो सकता है किसी का दिल न करे उन 3 चादरों में कफन देने, मैयत को कहेगा पता नहीं इसमें क्या होगा, हालांकि कुछ नहीं, हदीस है, सही हदीस है, बुखारी की हदीस है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी अपनी सवाबदीद पे है। अब अगर दूसरा तरीका किसी को पसंद है जिसमें कमीज भी हो तो वो वाला भी पहना सकता है। तो इसमें कोई भी एक हल हो गया, एक मसला हमारा हल हो गया, यानी मर्द मैयत के कफन पहनाने का मसला क्या हो गया? हल हो गया। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं रहेगा, कोई सवाल नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, जहां तक मैं सोचता हूं। अब है दूसरा मसला जरा औरत का। आज मैं औरत के कफन को नहीं छेड़ूंगा, टाइम हो गया है, मुकम्मल नहीं होगा। अलबत्ता इतना अर्ज जरूर करूंगा कि गुस्ल देने में मर्द और औरत को कोई फर्क नहीं, यानी जैसे मर्द को गुस्ल दिया जाता है वैसे ही औरत को गुस्ल देने, सिर्फ सतर का ख्याल रहे। लेकिन कफन देने में फर्क है, यानी कफन जो है मैयत मर्द का अलग है और औरत का क्या है? अलग है। लेकिन एक बात आप और याद रखें, वो ये है कि दोनों के लिए, चाहे मैयत औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए काफी कफन क्या है? ये जरूरी कफन क्या है? एक चादर। दोनों के लिए, चाहे मैयत मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए काफी कफन क्या है? एक चादर। यानी एक चादर में मैयत को भी हम लपेट सकते हैं, चाहे औरत है मर्द है, चाहे औरत है एक कफन एक चादर में लपेट लिया तो उसका कफन क्या हो गया? काफी हो गया। मर्द है एक चादर में लपेट लिया तो कफन काफी हो गया। लेकिन ये काफी वाला, किफायत वाला है। सुन्नत वाला क्या है? सुन्नत ये है कि औरत के मैयत में कितने कपड़े हों? 5 कपड़े। वो 5 कपड़े क्या होंगे वो इंशाल्लाह अगले दर्स में हम बोलेंगे, अगले दर्स में उनकी वजाहत होगी। मैयत मर्द का कफन जो है उसकी वजाहत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा आज का मौजू, आज का दर्स ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना हमें ख्याल रहना चाहिए कि जो हमारे अहबाब जो दुनिया से गुजरते हैं, देखिए हमने खुद इस दुनिया में नहीं रहना है, हमने नहीं रहना है, खुद मर जाना है, क्योंकि कुरान इस पे गवाह है और तारीख इस पे गवाह है, दुनिया इस पे गवाह है। एक बादशाह के बारे में आता है, रूस का बादशाह था, और ये लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, जो जवान है हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो इंसाइक्लोपीडिया आता है हिस्ट्री का, बड़ी सी किताब आती है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के बारे में लिखा जाता है। लोइस, रूस के जो बादशाह होते थे उनका लक़ब होता था लोइस। मुझे अब याद नहीं रहा वो 12वां नंबर का था या 4थे नंबर का था, ये पुरानी बात है। उसने क्या कहा कि मुझे मौत नहीं आनी चाहिए। उसने क्या किया था, अपना जो उसको रहने का जगह था, घर था, मकान था, उसके बाहर उसने, कितना अहमक था, उसके बाहर उसने क्या कर दी, शीशा पिलाई हुई दीवारें बनाई। लेकिन जब मौत का वक्त आया, वो शीशा पिलाई हुई दीवारें वहीं की वहीं रह गई और मौत के फरिश्ते उसको आके दबोच दिया और मर गया। तो मरना हर एक ने, उस मरने के लिए हमने तैयार होना है। और मैंने अर्ज किया था, इस्लाम में मैयत की भी उसी तरह इज्जत है जिस तरह जीते जागते इंसान की इज्जत है। इसीलिए इस्लाम ने कहा जब कोई मर जाए उसको ऐसे ही नहीं फेंकना है, बल्कि उसके हुकूक है, मरने के बाद भी उसके हुकूक है, वो हुकूक हमने पूरे करने। उसमें से कुछ चंद हुकूक हमने पूरे कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगले जुमा पर हम इंशाअल्लाह ताला जो औरत का कफिन है उसके बारे में कहेंगे। लेकिन मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने आपको वादा किया था कि इस महीने में मैं आपको हाजिर यहाँ रहूंगा और मैंने अपना वादा मुकम्मल किया, लेकिन अगले जुमा पर मैं यहाँ हाजिरी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम है ग्रेस में, मुझे वहां जाना है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो जुमा आएगा उस जुमा पर मैं यहाँ इंशाअल्लाह ताला जो औरत का जो कफिन है वो किस तरह दिया जाएगा उस पर मैं वजाहत करूंगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा जो हम तेरे दीन के लिए खिदमत करते हैं, परवरदिगार इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा जो हम तेरे इस्लाम की बुलंदी के लिए, तेरे बंदों तक इस दीन को पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, परवरदिगारा इसको रियाकारी से महफूज फरमा। परवरदिगारा हमें हसद करने वालों के हसद से महफूज फरमा। मैंने जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी, बहुत सारी तकलीफ देखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तकलीफों से, उन परेशानियों से हमें नजात अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग इस्लाम के करीब आना चाहते हैं, परवरदिगारा उनको हिदायत अता फरमा, परवरदिगारा उनको नुसरत अता फरमा। परवरदिगारा
हसद करने वालों के हसद से हमें नजात अता फरमा। परवरदिगार हसद हमारे दिलों से दूर फरमा। परवरदिगार गीबत हमारे घरों से रुखसत फरमा, गीबत को हमारे घरों से रुखसती फरमा, गीबत को हमारी जिंदगी से रुखसती फरमा। परवरदिगार जो हमारे लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, परवरदिगार उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार जो हमारी बस्ती के लोग इस दुनिया से चल बसे, परवरदिगार उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार हमारे चाहने वालों में से जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, परवरदिगार उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार कब्र के आज़ाब उनको दूर फरमा। परवरदिगार जन्नत की नियमतें उनको अता फरमा। परवरदिगार जन्नत की नियमतें उनको अता फरमा। परवरदिगार हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे अकरबा में से जो इस दुनिया से चल बसे हैं, परवरदिगार उनको मगफिरत अता फरमा। परवरदिगार उनकी मगफिरत फरमा। परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। परवरदिगार उनकी लग़्ज़िशें, उनकी खतियात को दूर फरमा। परवरदिगार जो हम में से बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। परवरदिगार जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमें दुआओं की दरख्वास्त की है, दुआओं के लिए बोला है, परवरदिगार उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार उनके मुश्किलात को रुखसत फरमा। परवरदिगार उनकी मुसीबतों को रुखसत फरमा। परवरदिगार उनके हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार तो कादिउल हाजात है, तो मुरादों को पूरा करने वाला है, तो दुआओं को सुनने वाला है। परवरदिगार हमारी दुआओं को भी कबूल फरमा। परवरदिगार हमें सही मानों में मुसलमान बना। परवरदिगार हमसे जो गुनाह होते हैं, परवरदिगार वो गुनाह हमसे माफ़ फरमा। अभी हमारे एक दोस्त की, हमारे एक भाई की जो लड़की है पैदा हुई थी, मैंने अभी सुना, इधर ही हमारे गांव का लड़का है, वो फौत हो गई है। तो जब बच्चा फौत होता है, ज़ाहिर सी बात है, गम होता है, परेशानी होती है। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हो गया था, अल्लाह के रसूल ने कहा था उनको मुखातिब करके, अपने बेटे को मुखातिब करके, उनका नाम इब्राहिम था, या इब्राहिम तेरे फिराक ने, तेरे जुदाई ने, ए इब्राहिम तेरी जुदाई ने, तेरे फिराक ने हमें गम में मुब्तला किया। और आगे फरमाया अल्लाह के रसूल ने इब्राहिम को मुखातिब करे, इब्राहिम हम अल्लाह के फैसले पर राज़ी, तो हमें अल्लाह के फैसलों पर राज़ी होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मराइल आते हैं जहाँ खतरा रहता है कि हम अल्लाह के नाशुक्र हो जाए, नाफरमान बन जाए। लेकिन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में ये अल्लाह के सब बेटियों का इंतकाल हुआ है सिवाय फातिमा के। अल्लाह के रसूल ने इतने गम बर्दाश्त किए और इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, हमारी तो मुश्किलात ही कुछ नहीं। मैं अपनी मुश्किलात को कुछ ही नहीं समझता हूँ। मेरे सामने मैं अपने आप को जब मोटिवेट करना होता है, आपको भी कहता हूँ, जब मुश्किलात से निकलना हो, कोई आपको सता रहा हो, कोई आपके लिए रोड़े खड़ा कर रहा हो, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो एक कौल मैं आपको बताऊंगा, जो कौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का है कौल है। वो कहते हैं जब लोग आपको पत्थर फेंके, क्या करें? जब लोग आपको पत्थर फेंके, हमने वो भी दौर देखा है, मैं नहीं तज़किरा करता, लेकिन कभी कभार मेरा दिल बड़ा रोता है, जल उठता है, फिर तज़किरा करना पड़ता है। मैंने वो दौर भी देखा है। तो इमाम, लेकिन हमारे सामने जब सहाबा हो, आइमा हो, फिर हम किसी को खातिर में नहीं लाते। आपको भी कहता हूँ, नौजवानों को भी कहता हूँ, अल्लाह के रसूल को आप नमूना बनाएं, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सहाबा को नमूना बनाएं, आपका बाल बीका नहीं कर सकता कोई। उलमा को नमूना बनाएं, कोई बाल बीका नहीं कर सकता। इमाम शाफी ने क्या कहा, जब कोई आपके ऊपर पत्थर फेंके, कचरा फेंके, पत्थर फेंके, वो पत्थर उठा के यहाँ से उनको मुंह पे मत मारो, ऐसी गलती नहीं करना। उन पत्थरों को उठा के पुल बनाओ, और वो पुल तुम्हारी कामयाबी का पुल होगा। और मैंने अपनी जिंदगी में ये तजुर्बा करके देखा है, जिन लोगों ने हमें मुखालफत की, जिन लोगों ने भी हमें सताया, हमने उनको यहां से पत्थर नहीं फेंके। मैं नौजवानों को भी कहता हूं, इसी उसूल को अपनाइए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को। उन पत्थरों को उठाओ, पुल बनाओ, और उस पुल पे चलो, इंशाल्लाह कदम कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफें आई, मैंने अभी तज़किरा किया कि अल्लाह के रसूल का बेटा फौत हुआ, कहा इब्राहिम हम तेरी जुदाई से महमूम हो गए, परेशान हो गए, खत्म हो गए। लेकिन मैं उस भाई, अपने भाई को भी यही नसीहत करता हूँ कि ये मुश्किलात आती हैं, हर किसी को आती हैं, मुझे भी, आपको भी, और हर इंसान को अपनी अपनी तरह से मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, पस्त नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल को सामने रखिए और कभी भी वाहिल्ला नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए अगर किसी का बाप फौत हो गया, कालब मस्कड़न, ये गुनाह है, ये कुफ्र है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सब्र करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। मैं अपने उस भाई को सब्र की तलकीन करता हूँ, उसकी अहलिया को सब्र की तलकीन करता हूँ, उसको सब्र की तलकीन करता हूँ, उसके घर वालों को सब्र की तलकीन करता हूँ, उसके मुताल्लिकीन को सब्र की तलकीन करता हूँ। सब्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वादा किया है कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला अजर देता है बगैर हिसाब व किताब के। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं, जब छोटा बच्चा फौत हो जाए, एक बात और याद रखनी चाहिए, मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए।
اس کے لیے کیونکہ وہ معصوم علی الخطا ہے, اس کا کوئی گناہ, یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار اس چھوٹے بچے کو کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے, اپنے خاندان کے لیے سفارشی بنانا, جنت میں داخلے کا ذریعہ بنانا. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی جو یہ چھوٹی بچی اس دنیا سے چل بسی ہے, اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی معصوم کلی کو کل قیامت کے روز ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنائے, بخشش کا سبب بنائے. اللہ رب العالمین ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے.